योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. We were in the first chapter and we had covered sutras up to five sutras. Atha yoga shasanam, yoga chittarutti nirodha, tada drashtu swarupe vasthanam vrittisarupe mitratra, vruttaya panchataya klishta klishtaha. प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं. प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति. अब ये यहां पे क्यों बता रहे हैं पतंजलि हमें? स्टार्टिंग में समाधि पाद है, इसमें पूरा एक पर्सपेक्टिव मिलने वाला है हमें कि व्हाट इज योग दर्शन. फ्रॉम सूत्र नंबर 1 टू सूत्र नंबर 51, देयर आर 51 sutras in this chapter. So because he wants us to understand how, in what activities we engage ourselves. हम, हमारा मन, हमारी सोच कैसी है, हम कहाँ रहते हैं. You know, psychologists say that 47% of your waking hours, you are not thinking of what is going on. Do you understand the significance of this? 47% of your waking hours, you are not thinking of what is going on. Your mental lives are pervaded by that which is not present. You are either in the past or you're in the future, and the present is slipping by, and you don't know what to do about it. So Patanjali is training you. He is making you aware that what are your vrittis. And we've already seen that they either take you towards yoga or take you away from yoga. There is no middle course. There is no trial run. As I said, I think last time I said, your life is fired at you point blank. So next 5 years of your life are going to go by anyway. You can't wait. Time or your flux, this samsara, this flux, it doesn't wait for anything. You are a part of it, so you are under some parinam or other every single moment. It is unavoidable. The moment you are born, the clock is ticking. And one day it is going to stop. It's a continuous clock. ये रुकता नहीं है. So this is a very different perspective Patanjali is giving us of life, of ourselves, of what we do, how we do it. What are our indulgences? What are our habituated patterns? तो इसलिए उन्होंने, there are n number of vrittis, but they can be broadly categorized under these 5 heads. So first let us see what is pramana. Pratyaksha, anumana, agamaha, pramanani. Praman has got 3 subdivisions. Praman means valid knowledge, or at least the knowledge which you think is valid at that point of time. Like right now, you are seeing me. So it is valid knowledge. I am not a specter or I am not an illusion. You're seeing me right now. You're hearing me. So I am your Pratyaksha. Pratyaksha आंखों के सामने, कानों के सामने, मैंने अपनी आंखों से देखा.
मैंने अपनी कानों से सुना. So by saying pratyaksha, he is referring to all the sensory organs. When sensory organs perceive something, at that point of time, it is valid knowledge for that sensory organ, for you, who perceives through the sensory organ. So that is pramana vritti. As I said, vritti is automatic behavior. That automatic behavior has cropped up because you're a human being. So you got these sensory organs. The job is to perceive things. And they're habitual. Eyes will see, ears will hear, nose will smell, skin will feel, tongue will taste. ये सब उनके विषय है. तो 24/7 they are doing that. रोल कम ज्यादा होता है. Your eyes and your ears are the most powerful ones. The most popular, in fact, your eyes. They shout down on all other organs. मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना. So that is pratyaksha. Praman means valid knowledge, irrefutable knowledge, doubtless knowledge, confirmed knowledge, indisputable knowledge. That is Praman. ये प्रमाण है, इसमें कोई दो राय नहीं. ओके. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे साथ कि आज सेंसेक्स ने बताया कि आज ये शेयर का भाव ये है, तो ये प्रमाण है उस दिन के लिए. So there are n number of examples of praman. Now anuman. Anuman means inference. So you're inferring all the time. Right now you're inferring. I'm giving you praman. I am praman. You're seeing me, you're hearing me. But what I'm saying, that you are trying to infer, that you are trying to analyze, that you are trying to absorb, understand, imbibe. So we are using inference in a very big way. We see certain things. They say, I see smoke on the mountain. I infer that there is fire there because I've experienced smoke and fire together. So inference is always based on praman because I have seen the praman once. I infer on the basis of that praman. So there are also n number of examples, छोटे-छोटे example. कि जैसे चाय की प्याली हाथ में दी और एकदम मैंने ओंठों से लगाई तो जल गया मेरे ओंठ. ये मेरे को अनुभव हो गया. नेक्स्ट टाइम मैं इन्फर करता हूँ कि चाय की प्याली हाथ में आई तो तुरंत ओठों को नहीं लगाने की, तो जल जाऊंगा. तो जैसे आग और स्मोक का एग्जांपल मैं दिया. अगर तुम इफ यू आर स्टैंडिंग बाय अ रिवर and suddenly the river floods, then you can infer that they have opened the gates of the dam, or there is rain on the mountain top. So all the time you are inferring. You are involved in pratyaksha. Your senses are receiving information. You are inferring all the time. And the third praman, where you don't have to see also,
or you don't have to infer also. It is by virtue of valid knowledge. कि जैसे electricity runs my fan. Now you don't have to see electricity. You don't have to infer also. It is there. It is also this is this agam. Actually, the word agam comes from aptavachan. मतलब जैसे उपनिषदों में जो कहा है वो प्रमाण है. अगर मेरा गुरु मुझे कुछ कहता है कि आशिक ये ऐसा ऐसा है, अब मैंने तो उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा, तो इन्फर का सवाल ही नहीं है. लेकिन चूंकि मैं मेरे गुरु पे पूरा विश्वास रखता हूं, इसलिए उसको आप्त वचन, आप्त मतलब मेरा अपना, कि जो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, जो मुझे सही बताएगा. जो साइंस, इतने सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस है, मैंने थोड़ा ना किए. ना तो मैंने प्रत्यक्ष किए, ना तो मैंने इन्फर किए, लेकिन आई रिलाई ऑन देम. So many things around us. I don't doubt. I'll give a very simple example. I am sitting in my house. In the morning, I'm ready to go to the office. I'm waiting for my driver. I'm sitting on the first floor. And still the driver, why isn't come? So I get up from my chair. I'm reading a newspaper. I keep the newspaper aside. I get up. I go to the balcony and look down on the road, and I see the driver coming, walking in. So I see, this is pratyaksha. I have seen the driver walking in pratyaksha. Now, again, the same scene. I'm reading the newspaper, waiting for the driver, and suddenly I hear the sound of the gate opening. And he has a very typical way of opening that gate. A very typical way. By hearing that sound of the gate opening, I know, I infer that the driver has come. Because I've heard that sound 100 times. This is inference. Again, the same scenario. I'm reading the newspaper, waiting for the driver, and suddenly my wife walks in and says, oh, the driver is here. That is aptavach, that is aga. So all three create valid knowledge in your mind. Is this clear? You see the moon in the night. That is pratyaksha. And you tell your friend, who's on the phone, and you tell him that, you know what, there's a lovely, beautiful moon in the sky right now. That is pratyaksha. That friend is hearing on the phone and he's visualizing it. Anna. But that is not inference. He's just visualizing, he's imagining it. That is another vritti, we'll come to that. Now suppose I have got spectacles, and without specs, I don't see one moon, I see two moons. Then will that remain valid knowledge? No. It will not remain valid knowledge. उस पर एक जोक है ना, कि जैसे डैडी और एक बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बाप उसको बोलता है कि चल, मैं, तू दोस्तों के साथ दारू शारू पिएगा, तो मैं तेरे को ले चलता हूँ, बाहर में जाएंगे, मेरे सामने पी, बिगड़ने का नहीं. तो जाते हैं दोनों, पीने को बैठते हैं, और फिर एक पेग होता है, दो पेग होता है. तो सडनली वो बच्चा बाप को पूछता है कि डैडी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को चढ़ गई है? तो डैडी बोलता है कि वो देखो, सामने के टेबल पे जो दो आदमी बैठे हैं ना, वो तेरे को चार दिखने लगे, ये समझ लेना चढ़ गई. तो बोलते, लेकिन डैडी वहां तो एक ही आदमी बैठा है. So,
तो अगर किसी को दो चांद दिख रहे हैं, क्योंकि वैलिडिटी ऑफ प्रत्यक्ष डिपेंड्स ऑन द करेक्टनेस ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स। तुम अगर बहरे हो, नहीं सुन पाते, तुमको बगैर चश्मे के दिखाई नहीं देता, तो तुम जो देखोगे देखोगे, जो सुनोगे, वैलिड नहीं हो सकता। तो फिर वो कौन से कैटेगरी में जाएगा? जो वैलिड नहीं है, या उस वक्त तुमको वैलिड लगा लेकिन बाद में इनवैलिड हो गया, तो वो कौन से कैटेगरी? तो जाएगा विपर्य में। तो दूसरा सूत्र है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठा। अतद्रूप मतलब उसका रूप जैसा नहीं है, लेकिन उस पे मैं सुपर इम्पोज करता हूं। चांद एक ही है, लेकिन उस पे मैं दो चांद सुपर इम्पोज किया। सो आई एम परसीविंग इट रॉन्ग, द थिंग इज करेक्ट, the other person might be perceiving it correctly, but it is these are your vrittis, so you are perceiving it wrong. इसका हमेशा एग्जाम्पल देते हैं शास्त्र में कि ये तुम रात को रास्ते पे घूमने जा रहे हो, गांव गए हो, कच्चा रास्ता है, suddenly you see a snake there, a big snake lying across the road, across the path, and you freeze and then you run back to the house and tell everybody I saw a snake, big snake. And then next day morning you walk down the same path with your brother. ये चल चल मैं बताता हूँ कहाँ पे सांप देखा. You go there and you see a big rope lying there. So what happened? You superimposed a snake on the rope. And we are doing this viparya all the time. We are superimposing things, not only inorganic but organic. हम किसी को मिलते हैं ना एक बार, तो उसके बारे में हम इम्प्रेशन बना लेते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इंटेलिजेंट है, ये डम है, ये सेल्फिश है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और वो लेबल अपन उसके माथे पे चिपका देते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट द पर्सन, यू डोंट मीट द पर्सन, यू मीट द लेबल. द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सास बहू. और सास ने बहू के माथे पे एक लेबल चिपका दिया है, और बहू ने सास के माथे पे एक लेबल चिपका दिया, एंड दे रीड द लेबल्स. तो सास, अगर वो टेढ़ा है रिश्ता, तो बहू कुछ भी बोलेगी, सास उसका गलत अर्थ निकालेगी. सास कुछ भी बोलेगी, बहू उसका गलत अर्थ निकालेगी. दिस इज विपर्य. व्हेन यू मिसरीड, मिथ्या ज्ञानम, false knowledge, that is false knowledge. So you take something to be valid, you take something to be praman, later on it turns out, oh, it was not praman, it was viparya. Or what is praman today will turn out to be viparya tomorrow. Again, the classical example is all those diet fads, है ना. आज बोलते कि ये खाओ, ये खाओ, ये सबसे बढ़िया चीज है. 6 महीने बाद बोलेंगे कि ये दैट इज पॉइजन, ये दूसरा खाओ, ये डाइट प्लान करो. फिर और 2 साल बाद ये दो डाइट प्लान एकदम गलत, ये नया एक डाइट प्लान निकला है, दिस इज बेस्ट. फिर उस वक्त के लिए वो वैलिड नॉलेज हो जाएगा. सो ये वैलिड इनवैलिड, प्रमाण विपर्य, जो प्रमाण नहीं है वो विपर्य हो जाता, और विपर्य है अगर सही साबित हुआ तो वो प्रमाण बन जाता है. सर, आई हैव अ हाँ. डाउट. हम्म. सर, विपर्य मीन्स फॉल्स नॉलेज बोल रहे हैं मतलब आप, सर?
when we perceive a thing the way it is not, Hmm. that is viparsana. It could be anything. Okay. Suppose you read a book and you read a paragraph and you understand that paragraph in a way, particular way. Tomorrow, when you go to your professor, the professor tells you that no, it is not so. It is this way. So he gives you valid knowledge. All the while, what you thought was valid knowledge was viparya. So you are, when you perceive, when you understand something that it is not, then it is viparya. करेगा समझ में आ रहा है नहीं? Yes, Sir, sir. Yes, sir. sir, can I ask you a या question? Sir, हाँ so बोलो. when we are talking about viparya as perception, so हम तो दिन भर perception करते रहते हैं. हाँ ना. But nowadays they also say कि it's my perception, that's your perception. या So there's nothing right and wrong because ये मैं देख रहा हूँ या आप देख रहे हो. तुम्हारे जगह से तुम ठीक हो, उसके जगह से वो ठीक है. So The then क्या हम litmus क्या is विपर्य में है हमेशा? नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो. हाँ. From your standpoint of view, है ना, अभी geographical लोकेशन से वैलिड नॉलेज चेंज होगा ना. हाथी का एग्जाम्पल लो. उन्हें क्या, हाथी 5-4 अंधे लोग रहते हैं, एक उसका पैर पकड़ता है, कोई बोलता है कि हाथी तो खंबे जैसा है, एक उसकी सोंड पकड़ता है, वो बोलता है ये तो फ्लेक्सिबल है, एक उसके कान को छूता है तो बोलता है ये तो सुपड़ी जैसा है. हाथी तो तुमको अब तीनों सभी बराबर है ना, राइट? सो यहाँ पे लेकिन ये बिफोर दिस प्रकरण स्टार्टेड ऑफ वृत्तिज, व्हाट वाज द सूत्र? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा. So the litmus is not whether you are right and I am wrong, or I am right and you are wrong. The litmus is whether it is taking me towards you or away from you. That is, this is a serious affair. See, Patanjali is telling you, don't waste a minute now. We have wasted a lot of time. Right? Now don't waste a minute. And that is why a viparya would be अक्लिष्ट. क्योंकि उसने क्या बोला है? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा. मतलब 5 वृत्तियां हैं और वो पांचों क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है. मतलब टेकिंग मी टुवर्ड्स यू, टेकिंग मी अवे फ्रॉम यू. उसके एग्जांपल्स देखिए. प्रमाण अभी वैलिड नॉलेज है. वैलिड नॉलेज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है तुम्हारे लिए. क्या एग्जांपल दो? प्रत्यक्ष आंखों के सामने. योग की तरफ क्या ले जाएगा, योग से दूर क्या ले जाएगा? पॉजिटिविटी योग की तरफ यार इन इक्वानिमिटी योग. ऑब्वियसली. हाँ. अगर मैं कोई सत्संग हो गया हूँ, बढ़िया सत्संग हो गया हूँ, मेरे आंखों के सामने क्या है? कानों से क्या सुन रहा हूँ? और वही मैं एक नाइट क्लब में कैबरेट देखने गया हूँ, तो मेरे आंखों के सामने क्या है? कानों के साथ से क्या सुन रहा हूँ? सो यू हैव अ चॉइस कि तुम्हारा वैलिड नॉलेज जो है वो तुमको कैसे रखना है, क्या देखना है, क्या सुनना है. तो गांधी जी के बंदर है ना 3. तो इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस. अब विपर्य विद्या ज्ञानम अतद्रुव प्रतिष्ठा.
तो ये अच्छी, ये तो विपर्य तो वैसे तो बुरा ही है ना, इनवैलिड नॉलेज है, तो उससे तो किसी का भला नहीं होगा। लेकिन ऐसे कौन से एग्जाम्पल है विपर्य की कि उससे किसी का भला हो गया? सोचो, इनएडवर्टेंटली। अगर इक्वानिमिटी फॉलो करो तो शायद विपर्य बराबर हो। यस, एब्सोल्युटली राइट। ब्रह्मचर्य या इक्वानिमिटी। अभी देखो तो, एक पत्थर की मूर्ति तुमने मंदिर में खड़ी कर दी और उसको तुमने राम का नाम दे दिया, और तद्रुप प्रतिष्ठा, ये विपर्य है। मूर्ति में कुछ नहीं है, तुमने उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया है, की है तुम्हारी श्रद्धा। इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ विपर्य। और तो राह चलते पत्थर को भी राम बना देते हैं ना, हनुमान बना देते हैं, शंकर बना देते हैं। विपर्य रूप मिथ्या ज्ञान, अतद्रुप प्रतिष्ठा। राम को किसने देखा है? किसे नहीं देखा। तो उसकी जो मूर्ति है सांवली, श्याम वर्ण, वो सब अलंकार हो गए, किसने बनाया? पौराणिकों ने, राजा रवि वर्मा ने, जिसने पहली बार पेंटिंग्स की। You're superimposed it, but it is a clister. It is not clister. बताओ ना मुझे, ये सुपर इम्पोजिशन अगर नहीं है तो प्रूव करो मेरे को। तुम एक पत्थर की मूर्ति या क्रिस्टल कुछ तो लेके आते हो और उस पे तुम तुम्हारी श्रद्धा डाल देते हो उसके ऊपर। what about the agam, the inference that we do with the वो पादुका मिली, वो उनके चरण मिले, नहीं all नहीं that? नहीं, वो आगम नहीं है, सॉरी। वो सी आगम, अगेन इट कम्स टू, मेरे गुरु, तुम्हारे गुरु ने बोला कि ये पादुका है और बस इसको तुमको करने का है पूजा, तो तुम्हारे लिए वो प्रमाण हो गया। लेकिन मैं आता हूं तुम्हारे घर और मैं मनी मन बोलता हूँ, क्या ये सब अंधश्रद्धा है, पादुका पे क्या ऐसा होता है ये, मेरे लिए वो विपर्य है, तुम्हारे लिए वो प्रमाण है। So again I am saying that is not the litmus. Whether it is right for you, wrong for me, the litmus is whether where it is taking you. Gayatri, if your camera is on, बीच में आओ, सेंटर में, तुम्हारा फेस कट हो रहा है। हाँ, ऐसे रखो। So do you understand? सोचो इसके बारे में। So it can be Again, right or wrong, but how it takes you closer to the yoga is the point. यम नियम के नजदीक है क्या? यम नियम के नजदीक है क्या? Is it helping me to follow my yama niyam? Otherwise, it is klishta. It will be a klishta if it is helping me, because don't forget, you are on the path now. You are not sitting there trying to understand this intellectually. And this is the mistake everybody invariably makes when they come to study the Yoga Sutras. They study it as a philosophy, intellectually. This is a workbook. You have to work on it. It's a roadmap. You have to walk. So if you're really walking, then what are your priorities? Your goal is there. The goal is fixed.
So he is asking you to qualify your behavior and your indulgences. And that is why he has brought up this topic. What are your vrittis? Because that is what you do 24/7. You don't do anything other than these 5 vrittis. But where are these vrittis taking you? Are they close to yama niyama or not? That is the question. So viparya. Third, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प. शब्द ज्ञान वस्तु शून्य मतलब ऐसी वैसी कोई चीज पैल्पेबल नहीं है. देयर इज नो सच थिंग इन एग्जिस्टेंस, बट काम चल जाता है शब्दों से, वर्ड्स से. विकल्प वैसी वस्तु उसके सामने अभी है ही नहीं. जैसा हमने फोन का एग्जाम्पल लिया ना, कि मैंने दोस्त को फोन पे कहा कि अरे मेरे सामने चांद है, तो मेरे लिए तो वो प्रमाण है क्योंकि मेरे आंखों के सामने है. तो आंख बंद करता है और इमेजिन करता है. वस्तु शून्य, उसके सामने वो वस्तु है नहीं. लेकिन शब्द ज्ञान, मेरे शब्दों ने उसे वो एहसास दिया. तो ये विकल्प वृत्ति है. विकल्प का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल इज टाइम. टाइम, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम. टाइम डजंट एग्जिस्ट. इट इज अ क्रिएशन ऑफ योर इंटेलेक्ट. और मेरे पास 2 घंटे है अभी, कहाँ है? जेब में. ये तो बुद्धि की परिकल्पना है. और हमारा टाइम पृथ्वी पे है, कैसे बनाया? वो अर्थ को रिवोल्यूशन 1 साल लगता, 365 डेज, उसको ब्रेकअप किया. अब यही टाइम अगर तुम मार्स पे जाओ, टोटल अलग रहेगा. जुपिटर पे जाओ, टोटल अलग टाइम रहेगा. गैलेक्सी में घूमो, टाइम ही नहीं है, अलग ही है वो. According to Yoga, the definition of time is very beautifully put by Patanjali in the last chapter. He says, Kshana pratiyogi parinam apranta nigrahya krama. Means, there is no time, there is only flux, there is only parinam. ये प्रकृति के जो त्रिगुण है, ये त्रिगुण कंटिन्यूस इसका परिणाम शुरू है. और वो परिणाम के पीछे टाइम क्रिएट होता है. अगर परिणाम नहीं है तो टाइम नहीं है. If flux stops, there is no time. और क्षण का एग्जाम्पल तो उतना बढ़िया दिया है उन्होंने. एक क्षण मतलब कितना अकॉर्डिंग टू योग? उन्होंने कहा परमाणु. परमाणु मीन्स क्वांटा, क्वांटम फिजिक्स का क्वांटा. मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बोसॉन पार्टिकल, जो गॉड पार्टिकल बोलते हैं ना, सन का. या मतलब जो एनर्जी भी है, पार्टिकल भी है, जिसको आगे डिवाइड नहीं हो सकता, उसको योग परमाणु बोलता है. नॉट योर परमाणु, बट योग का परमाणु वो है, क्वांटा ऑफ क्वांटम फिजिक्स. तो योग कहता है कि वो एक क्वांटा अपनी जगह से बाजू वाली उसके जितना ही डिस्टेंस कवर करने को जितना टाइम लेगा, वो एक क्षण है. कैन यू इमेजिन? दैट इज द वे दे हैव डिफाइंड क्षण. ओके, कमिंग बैक, सो टाइम इज विकल्प. लेकिन वो काम का विकल्प है, अक्लिष्ट है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चीजें पर्सपेक्टिव में डालता है. नहीं तो तुम तो घूम जाओगे जिंदगी में. अगर कैलकुलेशंस नहीं है टाइम का, तो वो क्लिष्ट नहीं है वृत्ति, अक्लिष्ट है, हेल्पफुल है. लेकिन शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प. मैं शेख चिल्ली बन गया. शेख चिल्ली पता है ना? यूटोपिया में गया मैं, सोचते हुए बैठे बैठे डे ड्रीमिंग की आदत लग गई. ख्यालों में ख्याली पुलाव पका रहा हूं. वस्तु शून्य.
तो वो क्लिष्ट विकल्प हो गया, है ना। तो So, यहाँ दो चीज, हाँ so our बोलो। future planning is all Vikalp. यस, इट इज विकल्प। मेकिंग अ चॉइस इज विकल्प, फ्यूचर प्लानिंग इज विकल्प। तो अभी तो वो क्लिष्ट भी हो सकता है, अक्लिष्ट भी हो सकता है, तो मैं ऐसे ही प्लानिंग करूंगा जो अक्लिष्ट रहेगा। नेवर फॉरगेट दैट यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ, you're walking, your walk has begun. Then only you will understand the sutras, otherwise you will not. Put yourself in those shoes and start walking. Bolo. Every sutra then has to have a reflection of Yama Niyama, right? Of course, इसलिए हमने वो पहले लिया, ताकि हमको एक बेसिक, क्योंकि मैं अगर यहां से शुरुआत करता चैप्टर 1 सूत्र 1 से, तो अभी हमें वो रेफरेंस नहीं लगता यम नियम का, बट नाउ वी नो। तो इसलिए तो पहले समाधिपाद उसने लिखा, टू गिव द एंटायर पर्सपेक्टिव, एंड देन साधन पाद लिखा, जिसमें यम नियम आते हैं, साधन टूल। ठीक है। तो यहाँ वो पतंजलि के दो चीजों पे ख्याल रखना है, एक तो वृत्ति कौन सी चल रही है, और क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है। क्योंकि ओवर इंटेलिजेंस इन अ वृत्ति ऑल्सो विल मेक इट क्लिष्ट, है ना। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अगर मैं हमेशा प्रमाण में रहा, तो फिर मैं बरसात में भीगूंगा कब, है ना। मैं जिंदगी का लुत्फ कब उठाऊंगा। मेरे गर्लफ्रेंड के साथ गाने कब गाऊंगा, प्यार कब करूंगा, इफ आई स्टे कट एंड ड्राइड ऑल द टाइम। तो तुम्हारा कौन से वृत्ति में कितना इंटेलिजेंस हो रहा है, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त विहार, कौन से वृत्ति में कितना इंटेलिजेंस हो रहा है, और वो इंटेलिजेंस तुम्हें योग की तरफ रख रहा है, ले जा रहा है, या दूर ले जा रहा है। तो चलना तो शुरू हो गया तुम्हारा, लेकिन उल्टा भी चल सकते हो तुम। तो दिशा कौन सी है तुम्हारी। नहीं तो फिर मत आओ इस पे, अभी मत आओ, टेक योर टाइम, रिजॉइस, और ऐश कर लो, फिर और थोड़ा झटका लगेगा, सफरिंग अगर। मैंने देखा है, अगर सफरिंग नहीं है तो बहुत कम लोग मुड़ते हैं यहाँ, लेकिन जिसने सफर किया है उसको ये जल्दी समझ में आ जाता है। जिसने दुख नहीं देखा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो क्यों आएगा यहाँ, है ना। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। नेक्स्ट, चौथी। हमने प्रमाण देखा, विपर्य देखा, विकल्प देखा, इसके ऊपर चिंतन करो पूरा हफ्ता। एग्जाम्पल्स मुझे देना नेक्स्ट टाइम। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति ही निद्रा, और यहाँ पे निद्रा के लिए उन्होंने वृत्ति इस्तेमाल किया वर्ड, बाकी कहीं नहीं किया, टू स्पेसिफाई कि निद्रा इज ए वृत्ति, निद्रा इज ए इंटेलिजेंस ऑफ योर चित्त। इस 5 चीजों में चित्त इंडल्जिंग रहता है हमेशा, वन और अदर, वेरी मर्क्यूरियल। पल पल वृत्ति बदल सकती है, प्रमाण की, विपर्य की, विकल्प की,
ऐसे फटाफट फटाफट बदल सकती है। और चित्त को आलम्बन, यहाँ पे और एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, आलम्बन, मतलब लटकन। चित्त लटकन के सिवा रह नहीं सकता, बिल्कुल सबीज समाधि तक। सबीज समाधि में भी लटकन रहती है, सिर्फ निर्बीज में लटकन छूट जाती है क्योंकि चित्त का ही विलय हो जाता है। लेकिन जब तक चित्त है, लटकन रहेगी। तो वो जो लोग बोलते हैं ना, नो थॉट्स मेडिटेशन, ये मत में कोई, वो इट्स वेरी चाइल्डिश, क्योंकि नो थॉट इटसेल्फ इज अ थॉट। योर चित्त कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लटकन, कैन नॉट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लटकन इट इज, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, दैट यू हैव टू डिसाइड। But don't get fooled by people who say that no, without Latkan. It will happen जब तुम संत ज्ञानेश्वर बन जाओगे तब। यहाँ पे अभाव प्रत्यय आलम्बना, लेकिन यहाँ पे लटकन वो काय की, कौन सी लटकन है? अभाव की लटकन है। अभाव की लटकन है यहाँ। अभाव प्रत्यय आलम्बना, मतलब हर वृत्ति में एक प्रत्यय है, प्रमाण में प्रत्यय है। मतलब वो जो भी है, मेरा परसेप्शन, वो जैसे कि मेरे चित्त के आईने में रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रत्यय हर वृत्ति में, प्रमाण में, विपर्य में, विकल्प में। लेकिन निद्रा में प्रत्यय क्या, अभाव, यही आलंबन है। सर नहीं समझ तो पाए, निद्रा में प्रत्यय का अभाव। अभाव, यही हाँ, आलंबन है। ओके। सर मतलब वृत्ति को अगर हम एक ऐसे बोर्ड के जैसे समझते हैं, सुनो ब्लैक सुनो बोर्ड, तो सुनो, हम। और हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, मतलब वृत्ति को जैसे ब्लैक बोर्ड जैसे समझते हैं, तो जब जो आलम्बन है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे कुछ है क्या सर? थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन। मिरर, ब्लैक बोर्ड क्यों, मिरर लो ना। हाँ, मिरर मिरर। मिरर, मिरर लो, अच्छा। मिरर लो तुम्हारे। सी फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सरिका, हम्म। यस। right now you're seeing me, okay, you are यस। hearing me. That यस is सर। wrong. To speak truthfully or correctly, accurately, it is wrong. You cannot see me directly. You cannot hear me directly. My roop and my talk is falling into the mirror of your chitta, and you are looking into the mirror. ओके। And that is why all of you are perceiving me differently. It depends on the ओके। makeup of your mirror. And now you will know how important it is to keep the mirror clean. यस। Otherwise, the reflection gets distorted. यस। इसलिए फिर पतंजलि ने चित्त परिकर्म बताए हैं कि चित्त की शुद्धि क्यों बताई उन्होंने, इसलिए क्योंकि उसमें जो प्रत्यय गिरेंगे वो प्रामाणिक चाहिए। ओके। जो प्रत्यय है ना, नील यस सर। क्षीर का विवेक करना है आगे जाके। अब यहाँ निद्रा में क्या हो रहा है कि सब कुछ सो गया है ना, सो गया आसमां, सब सो गया है, तो प्रत्यय तो है नहीं। अब लेकिन चित्त लटकन के सिवा तो रह नहीं सकता, तो किस चीज की लटकन लेता है फिर चित्त? इसका आंसर हमें सांख्य में मिलता है। सांख्य में एक सूत्र है, समाधि सुषुप्ति मोक्ष ब्रह्म रूपता। समाधि, वहां सुषुप्ति मतलब निद्रा, समाधि, सुषुप्ति, मोक्ष, ब्रह्म रूपता, ये तीनों में चित्त ब्रह्म रूप हो जाता है। तो जब तुम निद्रा में, गहरी निद्रा में, नींद में जाते हो, गहरी नींद में, उस वक्त
तुम ब्रह्मरूप हुए हुए रहते हो, तुम उस वक्त ईश्वर के आलिंगन में रहते हो। अंडरस्टैंड? गहरी नींद में यू आर इन द एम्ब्रेस ऑफ ईश्वर। अभी नेक्स्ट टाइम ये सोच के सोने को जाओ, फटाक से नींद आ जाएगी। And लेकिन so the तुम्हें Latkan doesn't exist. लेकिन 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 तुम्हें ये पता नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तमस हावी रहता है तुम्हारे ऊपर। यू हैव बीन मेड दैट वे। ये अविद्या का गुण है, तुम अविद्या में जन्मे हो, अविद्या में जी रहे हो, तो इसलिए त्रिगुणों का असर तुम्हारे ऊपर रहने वाला है। अब ये तमोगुण का असर तुम्हारे ऊपर, ये नेसेसिटी है प्रकृति की। प्रकृति को तुमको सुलाना है, तुम्हें रिपेयर करना है, तुम्हें सुलाना है, तुम्हें रिजुविनेट करना है। लेकिन उस वक्त तुम्हारे कॉन्शियसनेस का क्या? तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस उस वक्त पुरुष के साथ एक रूप हो जाता है, और यहाँ पे प्रकृति पूरा तमस का प्रभाव डालकर तुम्हारे शरीर पे काम करती है निद्रा में। अभी समाधि में क्या होता है? समाधि में सत्व गुण प्रधान रहता है, तो तुम ब्रह्मरूपता को अनुभव करते रहते हो जागते हुए। निद्रा में तुम ब्रह्मरूपता को अनुभव नहीं कर पाते, समाधि में तुम कर पाते हो, और मोक्ष में तो तुम ब्रह्मरूप ही हो जाते हो। सो रिमेंबर, अब ये निद्रा अक्लिष्ट कैसे होगी? अब ये क्लिष्ट कैसे होगी? ये तो अक्लिष्ट है निद्रा। अगर भगवान के आहोश में जा रहे हो, ब्रह्मरूप हो रहे हो, लेकिन निद्रा भी सात्विक रहती है, राजसिक रहती है, तामसिक रहती है। Dreams. Dreams come in under memory. That is the fifth vritti. We'll talk about it. It's a good question you asked. We'll talk about it. तो निद्रा क्लिष्ट कैसे? Uh, तो कभी one बोलो। question. If no dreams come during sleep, then what? That is only nidra. Without any Dream. thought? Yes, dreams is not nidra. Nidra is total sushupti, where there is absolute absence of pratyay. ड्रीम्स में तो प्रत्यय शुरू रहते हैं। ड्रीम्स कम अंडर स्मृति, which is the fifth vritti which we are going to discuss, and he put vritti last, smriti last, because पहले की चारों की स्मृति बनती है, इसलिए स्मृति उन्होंने आखिरी में ली। लेकिन पहले निद्रा, निद्रा जो क्लिष्ट होती है, देखो तुम कभी कभी जब सो के उठते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है कि क्या बढ़िया नींद हुई है, आई एम सो बिल्कुल फ्रेश, एनर्जेटिक। और वही कभी कभी बहुत इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर मेंटल कंडीशन, योर फिजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, लेकिन समटाइम्स व्हेन यू वेक अप यू आर फीलिंग वेरी डल or maybe agitated, you're feeling like a zombie. So that is a klishta nidra. And why it is happening? Because there is something wrong with your psychologically or physically. So you have to set it right to make your nidra a klishta, because it is your tryst with God. Okay? Sir, Yeah. how to do that? बोलो। How to do that? How to make it accomplished? Attend to your issues. If you have got psychological issues, mental issues, attend to them, address them, seek help, seek counseling, do something about it. But you can't compromise your nidra. If you got So, physical issues,
Go to a doctor, address your issues, but you have to experience Aklishta Nidra. It's very important. One query here. Yeah. So when one goes to bed and sleeps instantly and wakes up fresh, that means this is Aklishta Nidra, Yeah. sound sleep. Yes. Yes. If you feel rejuvenated, Yeah. now add this thought to it that you are with Brahma. You are Brahma Roop, and you'll feel even better. Hmm. Yes. See, because whose onus it is? The onus is on you. Patanjali is explaining 5 vrittis to you. There is no 6th vritti. All your life, you live through these 5 vrittis. Now then he says that, okay, let's identify them and let's check whether they are klishta or klishta. We want everything at our disposal to help us walk the path and reach the goal. So if I find that my nidra is a klishta, then I should do everything to see that it becomes a klishta. Hmm. If I Got find my praman is klishta, I should do everything to make it a klishta. Hmm. Got Suppose it. suppose you got a job, and the job is not a good job, it is like वो तुमको corruption करवाने लगाता है वो job. Everybody is corrupt in that office, so you also have to be corrupt. Leave that job. Onus is on you. It is you who is going to walk the path. So all the vrittis should turn aklishta eventually. All the vrittis. Then you will be living the yama and niyama. You'll be very close. How one can live without it then? Without what? Without spending some time for some self-entertainment. Of course you can. Who's stopping you? But it is against Yama. It depends. It depends how much you're going to invest, how much time you're going to invest, how much energy you're going to invest, what samskar it is going to create on you, because it will create a legacy. Whatever you do creates a samskar. And samskar, when samskar awakens, we call it memory. And that samskar, when it gets conducive environment, it wakes up. Hmm. Got it. So you see, here you are the scientist, you are the technician, you are the laboratory, you are everything. There's nobody else here. Yes. And it's very exciting. The journey is very exciting. It's a romance with life. Nice to hear. Yeah. सर पर बहुत बैक एंड फोर्थ होता है आई मीन यू ट्राई टू फोकस एंड you try to be on the Yama's path, Niyama's path. Then some situation comes again, past comes again, you I become the totally, same. Shashi, I totally agree with you. I am with you. But then again, the onus is on me. मेरे को कब तक, इसलिए ना आगे एक सूत्र पतंजलि दिया है चैप्टर 2 में, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। वो जब विवेक जागृत होने लगता है ना, तो उसको सब कुछ दिखने लगता है, उसको हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो दिखने लगता है। जो अभी मुझे सुख दे रहा है, तो लेकिन उसका पर्सपेक्टिव अभी इतना लंबा हो गया है कि वो तत्कालीन सुख जो है, उसके पीछे आगे क्या क्या होने वाला है, ये सब उसको दिखने लगता है। We are just toddlers. We just started the walking on the path.
या ये टॉडलर्स, किंडरगार्टन में भी नहीं है अपन, अभी तो उठ के ठीक से खड़े भी नहीं हुए हैं। आगे जैसा चलेंगे वैसा ये सब क्लैरिटी आती जाएगी। अभी तो ये बिल्कुल होना है भैया, कलयुग में रह रहे हैं यार। टीवी चैनल चालू करो, करप्शन के सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है वहां पे। झगड़े, नेगेटिविटी पूरा भरा पड़ा है। सो अगेन इट्स योर चॉइस। To stay in Viparya then, so that we don't see the reality. या इसे ज्यादा विपर्य में ही रहते हैं, विपर्य and विकल्प में, so that it is more हाँ, better. या यस, सो ट्रू। मतलब कभी कभी तो ये सब इतना फ्यूटिल लगता है ना, टोटली फ्यूटिल। बट यू नो व्हाट, when you start doing these things now, it gives you tremendous confidence within. You become independent. You become your own master. You don't depend on others then. You don't depend on events to become happy. That happiness, that joy of living, that Satchitananda it begins to blossom inside of you. Satchitananda. One thing I want to ask. When we go in this phase of life, at times they say ये तो cut off है हमसे. क्या कट ऑफ है? The friend circle says, but हाँ, she has gone haywire. She's away from us. She is living in another world. So keep aside. नहीं ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। So हर most of एक, अब the देखो कैसे हर एक की प्रवृत्ति रहती है। और जैसे अभी तुकाराम महाराज को एक जन ने पूछा कि महाराज अभी आप तो नहीं आएंगे अभी वापस, मतलब आपको तो मोक्ष मिल जाएगा अभी आपको। तो तुकाराम महाराज बोले कि क्यों ऐसा कह रहे हो, अगर ऐसी सेवा करने मिली मुझे जन लोग की तो मैं तो बार बार आऊंगा। मेरे लिए क्या ही, मेरे लिए यहाँ क्या वहां क्या एक ही है मेरे लिए, मैं तो उसके साथ हूँ। तो मैं विट्ठल धाम में रहूं या मैं यहाँ रहूं, विट्ठल तो मेरे पास ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैं तो चाहूंगा मैं बार बार यहाँ आके लोगों की सेवा करूं। ऐसा भी है ना। और ऐसा भी है कि जो संन्यास्त हो जाते हैं, जो विड्रॉ हो जाते हैं पूरे, बट बोथ आर हैप्पी। इज द क्वेश्चन ऑफ योर जो मैंने अभी कहा, तुम्हें सच्चिदानंद लग रहा है क्या, फिर वो तुम लोगों में रह के या अकेले में। तुम अगर सच्चिदानंद में पहुंच गए, सत इज आई एम इटर्नल, चित इज आई एम क्लियर कॉन्शियसनेस, एंड आनंद इज आई एम ब्लिस। यह धारणा अगर स्थायी हो गई तुम्हारे चित्त में, तो फिर तो तुम कहीं भी रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभ्यास, अभी आगे जाके और सूत्र हम पढ़ेंगे ना, तो और क्लैरिटी आती जाएगी। ओके, yes. चलो अभी आज यहाँ रुकेंगे हम लोग। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति